بسم الله الرحمن الرحيم. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. تو مجلس پڑھ لوں اتنے وقت کی کہ جتنا وسیع خانی صلوات شریف کیونکہ ابھی شبی ہے ذوالجناح بھی برآمد ہوئی ہے اور آپ کو اس کی زیارت بھی کرنی ہے. بہت ہی مختصر سا، کوئی تفصیل میں نہیں جانا ہے. قرآن مجید کی جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے اس آیہ کریمہ کا شان نزول شب ہجرت ہے. اور شب ہجرت الحمدللہ اب جانتے ہیں کہ شب ہجرت ہے کیا. رسول نے ہجرت کری ہے تو اس کو بستر پر لٹایا ہے. تو یہ آیت جو نازل ہوئی ہے یہ مولا کائنات امیر المومنین زیادہ تفصیل سے بیان نہیں کرنا ہے، مگر ہاں ایک بات ضرور ہے کہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا اور ہر سال آپ دیکھتے ہیں اور سنتے بھی ہیں کہ جہاں ایام اضحیٰ کا چاند دکھنے کا زمانہ آیا اور لوگ جو ہے مبارکباد بھی پیش کرنا شروع کرتے ہیں کہ صاحب نیا چاند مبارک ہو، اور پھر اس کے اندر مبارکباد کی وجہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ صاحب آدم کی توبہ قبول ہوئی اور نوح کی کشتی لگی اور یہ ہوا وہ ہوا. سینکڑوں باتیں وہ بیان ہوا کرتی ہیں. یہ تو ایک بہانہ ہے کہ آدم کی کشتی ہوئی ہے سب، لیکن وجہ کیا ہے؟ اصل میں یہ مبارکباد چلی کہاں سے تھی؟ یہ آپ یہ نہ سمجھے کہ صاحب یہ اسی دور کی 10 20 25 سال پرانی بات ہے. یہ بہت پرانی بات ہے. جب سے شب ہجرت، جب سے ہجرت کا واقعہ پیش آیا ہے تب سے مبارکباد کا سلسلہ ہوا. ہجری سال کہتے ہیں اس سال کو کہ جس سال رسول اسلام نے مکہ سے مدینے کے لیے ہجرت کی ہے. تو اس سال سے، اس روز سے جو گنتی ہوئی ہے اور سال کا نام رکھا گیا تو وہ ہجرت کا سال ہجری رکھا گیا. اسے ہجری کہا جاتا ہے. اس سے پہلے سالوں کے نام رہے تھے کہ عام الفیل رہا، پھر سال بعثت رہا. جب بعثت کا اعلان ہوا تو وہ سال زمانہ جو تھا وہ بعثت تک کہلایا. پھر وہ عام الفیل، جب ابرہا کا لشکر خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا تو اس سال سے وہ سال کا نام عام الفیل ہو گیا. اسی طرح سے اس سال کا نام ہجری جو پڑا وہ رسول اسلام کی ہجرت سے پڑا. تو ہجرت جو رسول اسلام نے کوئی راضی اور خوشی تو کی نہیں تھی. کون اپنی مرضی سے اپنے گھر بار کو چھوڑ کے جائے؟ کوئی ہے ایسا نہیں ہے جو اپنی مرضی خوشی خوشی چھوڑ کے جا رہا ہو. مجبور ہو گئے تھے رسول اسلام. اور یہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے جو بہت کم بیان کیا جاتا ہے کہ جب رسول اسلام کے ساتھ جو ظلم ہوئے، جو انہیں پریشانیاں، جو انہوں نے مصائب اپنی زندگی میں اٹھائے، اور جس کی وجہ سے اور یہ ایک سازش تھی کفار مکہ کی کہ 40 بہادر نوجوان الگ الگ قبیلے کے بڑے جنگجو اور خونخوار بلائے گئے تھے کہ وہ رسول اسلام کا کام تمام کر دیں. اور 40 مختلف قبیلوں سے اس لیے بلائے گئے تھے کہ اگر بدلہ لیا بھی گیا، محمد ابن عبداللہ، وہ تو محمد ابن عبداللہ کہتے تھے، رسول اسلام تو ہم کہہ رہے ہیں، محمد اگر مارے گئے تو پھر ان کے بعد ان کے خاندان والے جو ہیں، ان کے گھر والے جو ہیں، وہ جو بدلہ لیں گے تو کس کس قبیلے سے لڑائی لڑیں گے. 40 قبیلوں سے لڑائی لڑنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. ایک قبیلے کی بات ہو تو انسان نبٹ لے، لیکن 40 قبیلوں سے، یہ ایک پالیسی تھی ان کی کہ 40 قبیلوں سے بلا لیا. ایک ایک جوان، ایک دو ادھر سے قبیلوں سے بلائے گئے اور وہ محاصرہ ہو گیا اور رسول اسلام کو ہجرت کرنی ہوئی. تو عزیزان محترم، تب جب رسول اسلام ہجرت کر کے چلے گئے ہیں
तब आपस में कुफ्फारे मक्का ने रसूल इस्लाम के हिजरत करने की खुशी में एक दूसरे को मुबारकबाद पेश करनी शुरू कर दी थी कि साहब मुबारक हो। और चूंकि हिजरत हो गई थी तो वो हिजरी साल कहलाया, तो उन्होंने कहा कि साहब ये नया साल है हमारे लिए, इसलिए ये मुबारक हो। तो हमें इससे बहस नहीं है कि कौन मुबारकबाद क्यों देता है, भाई तुम मुबारकबाद ना दो, लेकिन हाँ इतना जरूर पता चल जाता है मुबारकबाद से कि उनकी नस्ल पता चलती है, हमारी असल पता चल जाती है। सलावत भेजो मोहम्मद तो अजीज़ान, मतलब ये जो शब हिजरत है ये सिर्फ इसी वजह से कि शब रिसालत को गुल कर दिया जाए। ये कुफ़ार मक्का के एक चाल थी और उन्होंने ये साजिश की, और हालांकि वो कामयाब ना हो सके। चारों तरफ उन्होंने मुहासरा किया रसूल इस्लाम के घर का। रसूल इस्लाम मौला कायनात को बुला के ये कहा रसूल इस्लाम ने कि अली आज की रात हिजरत की शब है और ये मैं चूँकि जा रहा हूँ और आज रात तुम्हें मेरे बिस्तर पे सोना है। किसे सोना है? मौला कायनात को। रसूल जा रहे हैं, ये भी मालूम है कि चारों तरफ दुश्मन हैं, नंगी तलवारें हैं, बड़े जंगजू और बहादुर अरब के कुफ्फार। अली को छोड़ के क्यों जा रहे हैं बिस्तर पे? अली को छोड़ के क्यों जा रहे हैं बिस्तर पे? क्या वजह है, क्यों छोड़ के जा रहे हैं? या रसूलुल्लाह, अगर अपने बिस्तर पे लिटा के जाना है तो उन्हें लिटा करके जाइए कि जो आपके बाद खिलाफत के दावेदार हैं। अली क्यों जिम्मेदार हो? रसूल के बाद अली थोड़ी है जो अली को लिटाया जा रहा है शब हिजरत। किताब अली तुम लेटो, अली और लेटना नहीं है, तुम्हें सोना है। रसूल इस्लाम ने कहा कि ये अली तुम्हें सोना है। अब लेटना भी है और सोना भी है, बड़ा मुश्किल काम है। अभी मालूम हो जाए कि जहाँ पर मैं रात में सोना है मुझे, वहाँ पर ख़तरा ये है कि साहब मेरी जान को ख़तरा है। तो ईमानदारी से बताइए, मैं कितना भी बड़ा बहादुर क्यों ना हूँ, लेट तो जाऊँगा मगर जागता रहूँगा डरती हुई। मेरी जान को ख़तरा हो जाए तो मैं कितना ही बड़ा बहादुर क्यों ना हूँ। लेकिन अली सोए, अली सोए। कसम से अगर हम जैसा मुल्ला होता तो कहता हम तो नमाज शब पढ़ने के आदी हैं, हम तो रातों को तिलावत करने के आदी हैं। या रसूलुल्लाह आप कह रहे हैं कि हम सो जाएं, लेकिन अली थे। मौला कायनात को मालूम था कि रसूल के ज़बान से उनके लब हिल जाए, जो रसूल की ज़बान से निकल जाए वही इबादत इलाही है। और अली बड़े इत्मीनान के साथ सब शब हिजरत सो गए हैं। तो ये कोई, अब यहाँ पर ये कहा जाता है कि साहब बहुत बड़े कमाल की बात है, जाहिर सी बात है कि 40 नंगी तलवारें एकदम हमला करने के लिए लोग तैयार हो जाएं और मौला कायनात वहाँ पर इत्मीनान से सो रहे हैं, तो ये कमाल है कि नहीं है? कमाल, कितना बड़ा कमाल है। कोई बड़े से बड़ा बहादुर भी ये अमल अंजाम नहीं दे सकता, लेकिन मौला कायनात ने ये अमल अंजाम दिया, तो ये बहुत ही बड़ा कमाल है। लेकिन अजीज़ान मोहतरम, मैं तो ये सोचता हूँ, ये मेरा अपना नज़रिया है, आपका नज़रिया नहीं है, मेरा अपना नज़रिया है कि ये कोई बहुत बड़ा कमाल नहीं है कि अली बिस्तर रसूल पे सो गए खतरों की हालत में। ये तो जनाब अबू तालिब की तरबियत का नतीजा है कि शेब अबी तालिब में रसूल के बिस्तर पे बार बार अली को लिटाया करते थे। जब मालूम था कि दुश्मन जो है आज रात हमला कर दे, पता नहीं कब हमला कर दे, तो जिस बिस्तर पे रसूल इस्लाम लेटते थे, आधी रात गुजरने के बाद रसूल इस्लाम को इस बिस्तर से उठा के अली के बिस्तर पे, अली को उठा के नबी के बिस्तर पे लिटा दिया करते। मेरा बेटा कत्ल हो जाए, रसूल बच जाए। तो ये तो तरबियत है, इसमें कोई कमाल है? ये तो पहले ही बचपन में रसूल इस्लाम ने मौला कायनात को ट्रेन कर दिया था कि अली खतरों की रात आएगी, लिहाजा तुम्हें सोना है। तो ये कोई कमाल की बात ये है कि ऐसी खतरों की रात में रात भर खुद तो इत्मीनान से सोए और इन्हें रात भर जगाया। ये जागते रहे और मौला कायनात इत्मीनान से सोते रहे। अब सोना इसलिए था कि हुक्म रसूल था कि सोना है, तो अब सोना है। तो अब मुझे बताइए, ये दिनों रात रसूल इस्लाम की जो ज़िंदगी है, बचपन, लड़कपन, जवानी, इन बड़े बड़े घाघ लोगों के सामने गुजर रही है। तो इन्हें तो मालूम है रसूल किस अंदाज से उठते हैं, किस अंदाज से बैठते हैं, कैसे क्या काम करते हैं, किस अंदाज से सोते हैं। तो मुझे बताइए कि अब अली को अली बन के नहीं सोना, बल्कि नबी बन कर के सोना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कि ये जानते हैं, समझ जाएंगे सोने के अंदाज से। बड़े मक्कार थे, मक्कार हैं, बड़े मक्कार हैं। इन्हें मालूम है कि ये सोने के अंदाज से समझ जाएंगे कि ये नबी नहीं, मोहम्मद नहीं, अली सो रहे हैं।
तो आप सुना ऐसी रात में एक क्लिप सुन रहा था, एक अहले सुन्नत के आलिम दीन हैं और वो बयान कर रहे थे और वो ये कह रहे थे कि जनाब रसूल इस्लाम के बारे में कि रसूल इस्लाम जब अपने घर आने के थे, मैं बहुत मुख्तसर करके बता रहा हूँ, पूरी एक क्लिप है, तो वो ये कहते कारी अब्दुल मन्नान, वो ये कह रहे थे कि अम्मा आयशा अपने घर में थी, उनके जुमले हैं ये, देखिए उनके जुमलों के जिम्मेदार हूँ। वो ये कह रहे थे कि अम्मा आयशा अपने घर में थी, रसूल इस्लाम कहीं से आ रहे थे, घर में आने से पहले गली ही में जब उन्होंने देखा रसूल इस्लाम ने जैसे ही दरवाज़ा खटखटाया और खोलना चाहा खटखटा करके, तो देखा तो सामने अम्मा आयशा खड़ी हुई है, दरवाजे पे इंतज़ार कर रही है। बहुत से ऐसे आपने मंजर देखे होंगे। देखा कि रसूल इस्लाम ने कहा कि ए आयशा ये बताओ कि तुम जो हो, तुम्हें कैसे मालूम कि मैं आ गया हूँ और तुम दरवाजे में मेरा इंतज़ार कर रही थी दरवाज़ा खोलने के लिए? तो उन्होंने कहा कि चूँकि जब आप घरी में दाखिल हुए तो आपके जिस्म अथर से वो खुशबू निकलती है जो किसी के अंदर नहीं है, और इतनी दूर से मैं खुशबू रिसालत मैंने सूंघ ली थी। क्या सूंघी थी? खुशबू रिसालत मैंने सूंघ ली थी। आप जब गली में दाखिल हुए थे मैंने खुशबू रिसालत सूंघ ली, मैं समझ गई थी कि हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। मैंने चाहा कि कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें दरवाजे पे इंतजार करना पड़े। मैं दौड़ करके दरवाजे पे पहुंच गई, जैसे ही आप आए मैंने दरवाजा खोल दिया। तो अब मालूम यह हुआ कि खुशबू रिसालत जो जिस्म से निकलती थी वो कितनी दूर तक निकलती थी, और लोग पहचान लिया करते थे कि मोहम्मद है। तो अब अली को अली बन के नहीं सोना है, बल्कि जिस्म से वही खुशबू निकलनी है। सलावत है मोहम्मद इत्मीनान की नींद सो रहे मौला कायनात। जैसे इत्मीनान की नींद। अब मुख्तसर ये है कि परवरदिगार आलम ने वहाँ पर फरिश्तों की महफिल में फ़ख्र मुबात किया। तो फरिश्ते जो थे वो महफिल थी, नूरानी महफिल थी, परवरदिगार आलम फ़ज़ाइल बयान कर रहा था। अब ये तारीख़ में लिखा है, तमाम शिया सुन्नी सबकी किताबों में लिखा हुआ है कि एक मरतबा फरिश्तों ने, जिब्राइल ने ये कहा कि पालने वाले क्या कोई ऐसा शख्स है? परवरदिगार आलम ने कहा कि देखो कि एक भाई ने एक भाई के ऊपर अपनी जान कुर्बान की और इत्मीनान से सो रहा है। तो जिब्राइल ने कहा कि कोई ऐसा है कि दुनिया में? तो परवरदिगार आलम ने नीचे देखो, अली सो रहे। परवरदिगार आलम ने जनाब जिब्राइल और जनाब मीकाईल को बुला के कहा मैंने तुम दोनों को भाई भाई बनाया, दोनों को भाई भाई बनाया। तुम में दोनों में से कौन भाई ऐसा है जो अपनी जान दूसरे भाई पे कुर्बान कर दे? तारीख कहती दोनों फरिश्ते खामोश, दोनों खामोश हो गए। कहा तुमसे जवाब नहीं दिया जा रहा, तुम्हारा काम ये है कि तुम नीचे जाओ और जाने के बाद एक सरहाने खड़ा हो, एक पायती खड़ा हो और जा करके अली इब्ने अबी तालिब को मुबारकबाद दो। और जब वो चले हैं तो रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ये गुलदस्ता भी तो साथ में लेते जाओ। कहा क्या गुलदस्ता? कहा वमिन अन्नास मन यशरी, लोगों में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने नफ्स को परवरदिगार आलम की मर्जी खरीदने के लिए बेच देते हैं, और अल्लाह अपने बंदों पे बड़ा मेहरबान है। तो जो अपने नफ्स को बेच करके रिज़ाए रब हासिल कर ले उसको अलैहिस्सलाम कहा जाता है, रज़ी अल्लाह नहीं कहा जाता है। सलावत है मोहम्मद। अपने नफ्स को बेच करके मर्जी इलाही खरीद लेते हैं। दोनों ऐसा बखिन बखिन लगा या अली इब्न अबी तालिब लैसा का मिसलिक, मुबारक हो या अली इब्न अबी तालिब, अबू तालिब के बेटे, कि तुम जैसा कोई नहीं है। आपने अकायद इस्लामिया में ये चीज़ पढ़ी होगी, सिफ़ात परवरदिगार में एक सिफत ये भी है कि इस बात का भी इकरार करना पड़ता है कि परवरदिगार आलम वो है कि उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं। अगर जरा सभी रत्ती बराबर भी हमने उसके जैसा माना तो दायरा इस्लाम से खारिज। अब देखिए उसकी सिफत क्या है, वो अहद है, समद है, वाहिद है, और आखिर में क्या लिखा है? जो बच्चे मेरे पास पढ़ते थे मकतब में शायद उन्हें याद हो कि मैंने अव्वल की किताब में है कि लैसा कमिसले, कि उसके जैसा कोई नहीं। अकायद में यह भी अकीदा है, यहाँ वो अहद है, समद है, बेनियाज है, और वहाँ पर यह है कि उसके जैसा कोई नहीं। तो वहाँ
तस्बीह पढ़ रहे हैं फरिश्ते, लैसा कमिस्लिक, पालने वाले तेरा जैसा कोई नहीं, पालने वाले तेरा जैसा कोई नहीं। जब शब हिजरत यहाँ पर आए अली के पास, तो अली के पास आके रहे लैसा कमिस्लिक, ए अली तेरे जैसा कोई नहीं है। ये दो रुखी बातें हो गई कि नहीं। उसकी बारगाह में पहुंचे तो तेरे जैसा कोई नहीं, इसकी बारगाह में आए तो तेरे जैसा कोई नहीं। क्या मामला है ये तो दो तरफा मामला हो गया ना। ऐसे कि जैसे दो नावों में एक इंसान सवार हो गया है। एक इंसान दो नावों में अगर सवार हो जाए और वो दो नावें कहीं अगर लहरें ऐसी आए कि दोनों जुदा जुदा अपने अपने रुख पे हो जाए, तो फिर उस इंसान का क्या हश्र होगा, बेचारा बीच में से चिर जाएगा। तो ये तो दो नावों पे सवार होना हो गया। उसकी बारगाह में, ए जिब्राइल, उसकी बारगाह में लेसा कमिसले, मेरे महबूब तेरे जैसा कोई नहीं। यहाँ है अली के पास, तेरे जैसा कोई नहीं। हमने अपने उस्ताद मोहतरम से पूछा, जनाब शफीउल हसन साहब नजफी मरहूम से, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। उन्होंने कहा हुजूर ये क्या बात है आखिर? कहा तुम जानते नहीं हैं। कहा क्या? कहा कह क्या रहे हैं जिब्राइल? लैसा कमिसलिक बखिन बखिन लका या अली इब्न अबी तालिब, ए अबू तालिब के बेटे अली, तुम्हें मुबारक हो कि तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। भाई कुल हो अल्लाहु अहद, बोले अब तुम पहले सूरह तौहीद पढ़ो। कुल हो अल्लाहु अहद, हबीब कह दो कि अल्लाह अकेला है, अल्लाह समद, वो बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, ना उसके कोई बेटा, ना वो किसी का बेटा, ना वो किसी का बाप, ना उसका कोई बाप। ये है ना उसका कोई बाप, ना इसका कोई बाप, बस यही बात है, ना उसका कोई बाप, ना इसका कोई बाप। कहा अगर जिब्राइल और मीकाईल ये कह करके मुबारकबाद देते तो ये दायरे इस्लाम से खारिज हो जाते और इनके ऊपर अजाब नाजिल होता। अगर ये कहते बखिन बखिन लका या अली लैसा कमिसलिक, ए अली तुझ जैसा कोई नहीं है, कहा ये बिल्कुल खारिज हो जाते। मगर इन्होंने अली इब्ने अबी तालिब कहा, यानी ए अबू तालिब के बेटे, तो फरमाने लगे कि अबू तालिब के ईमान को साबित करने वालों, ईमान बाद में साबित करना, कम से कम इतना सोचो कि नाम अबू तालिब वो है जो फरिश्तों का भी ईमान बचा लेता है। हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम व ईमान हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम बावाज़े बुलंद जब सुबह हुई है हिजरत की और मौलाए कायनात को जो सुपुर्द किए गए हैं उमूर, अब उससे तफसील का वक्त नहीं है, वो अंजाम दे करके मौलाए कायनात अहले हरम को ले करके, जो औरतें थी उन्हें ले करके, और मक्के की गलियों से ये कहते हुए निकले कि ए मक्के वालों, अली इब्न अबी तालिब रात के अंधेरे में नहीं दिन के उजाले में जा रहा है, जिसे रोकना हो रोक ले, जिसे टोकना हो टोक ले। ये कह करके मौलाए कायनात चले हैं और ये पूरा काफिला ऊँटों पे अहले हरम है, खुद पैदल है। जैसे ही मक्का के बॉर्डर पे पहुंचे तो तमाम का तमाम कुफ्र सिमट करके सामने आया और उसने आने के बाद रास्ता रोक लिया। अबू सुफियान की क़यादत और जितने भी अबू थे सब आ गए सामने, और आने के बाद वो खड़े हो गए, अली तुम्हें हम जाने नहीं देंगे। क्यों? कहा जब तक मोहम्मद का पता नहीं बताओगे कि मोहम्मद कहाँ है। हमें मालूम है कि तुम्हें पता है कि मोहम्मद कहाँ है, यानी इतना तो कुफ्र की ज़बान पे भी था कि अली को मालूम है कि मोहम्मद कहाँ है, जब तक तुम पता नहीं बताओगे। मौलाए कायनात ने एक मरतबा अहले हरम को पीछे लिया, खुद आगे बढ़े। और कोई होता तो औरतों को आगे कर देता, ये अली थे, आगे लिया और आने के बाद सामने खड़े होकर के अपनी तलवार के कब्जे पर हाथ रखा और हाथ रख के बोले तुम ये तलवार जानते हो, अभी जुल्फ़िकार नाज़िल नहीं हुई है, जनाबे अबू तालिब की तलवार है। कहा ये मेरे बाबा अबू तालिब की तलवार है, जानते हो? अगर ये तलवार बाहर आ गई, आज मुझे कोई नहीं रोक सकता, अगर ये तलवार बाहर आ गई तो याद रखना कि मक्के में तुम्हारी बेवाओं के सरों पर बेविगी का रुपट्टा डालने वाला भी मौजूद ना होगा। और ये कह करके मौलाए कायनात आगे बढ़े तो बड़ा अच्छा किसी जाकिर ने वो जुमला कहा है कि अली शेर इलाही की तरह बढ़ा और मजमा काई की तरह बढ़ा। याद रखो, आज मुझे रोकने वाला वो रोकने वाला नहीं है कि जो मुझे मौके पर मौके रोक लिया करता था, आज नहीं रोक सकता है। तो ये इमाम अली अलैहिस्सलाम ने कहा है। तो देखिए खून का असर नस्ल दर नस्ल आया करता है।
नस्ल दर नस्ल आया करता है। बिल्कुल। मैंने एक किताब में तो नहीं पढ़ा, लेकिन एक बहुत बड़े बुजुर्ग आलिम दीन के मुंह से ये सुना था कि जिस वक्त मौला अब्बास मैदान में पहरा देते थे और रात का वक्त होता था, तो फौज यजीदी जहाँ उनका मस्कन था उन्होंने बनाया था, अभी छावनी बनाई थी, कहा उसके आगे जो फ़ौज खड़ी होती थी पहरे के लिए, वो फ़ौज पीछे कदम हटाने लगती थी। जैसे ही पहरे के लिए वो थोड़े आगे बढ़ते थे, तलाया करते थे, तो फ़ौज पीछे हटने लगती थी। कौन है? का शेर इलाही का शेर टहल रहा है। कितनी बड़ी धारस थे मौला अब्बास। ये तो कोई शहजादियों पे दिल से पूछे। एक मरतबा देखा तो कोई सिपह सालार चला आ रहा है सामने से, जेवरात जंग पहने हुए, ज़रा और तलवार लगाए हुए। फ़ौरन आवाज़ दी कि कौन? वो आगे बढ़ता चला गया। एक मरतबा मौला अब्बास ने कहा कि अपने कदम वहीं रोक लो, वरना ये तलवार अगर बाहर निकल आई तो तेरी बेवा के सर पे कोई चादर डालने वाला नहीं होगा। खून का सर कहाँ से कहाँ तक आया, कहाँ से कहाँ तक आ गया। कितनी बड़ी ढारस से सुकून से सैदानियत होती। आपको मालूम है जब मौला अब्बास की शहादत हुई है तो सबसे पहले क्या बात कही है इमाम हुसैन सलाम ने? जो मर्सिया कहा है उस पर एक मिसरा ये लिखा है, ए अब्बास अब वो आंखें आराम से सोएंगी जो रात भर जागती, और वो आंखें रात भर जागेंगी जो जगह जगह रोका जाता था। वलीद के दरबार में भी रोका है इमाम हुसैन सलाम ने। जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम के जनाजे पर तीर लगे हैं और मौला अब्बास गैज़ में आए हैं, लेकिन अभी तलवार नहीं निकाली है, लेकिन इमाम हुसैन सलाम समझ जाया करते थे, तो वहाँ पर भी रोक लिया। भैया ये मैदान जंग नहीं है, भैया का जनाजा तो करना है। एक हर जगह रोक लिया करते थे। और करबला में भी 3 मुहर्रम को मौला अब्बास को इमाम हुसैन सलाम ने जनाब शहजादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के ज़रिए रुकवाया है। तो ये कहा है जनाब शहजादी ने रोका, कहा कि भैया अभी तलवार ना निकालना। अज़ीज़ान मोहतरम, आप अंदाज़ा कीजिए, मैं अभी शहादत नहीं पढ़ रहा हूँ, अंदाज़ा कीजिए कि जिस इंसान के कान में बचपन से ये आवाज़ आती हो तो मैं करबला के लिए तैयार किया, तो मैं करबला की, इसकी जवानी भी ऐसी ही पल रही हो और आवाज़ ही आती हो। अब तो करबला भी आ गई है। अब क्या वजह है? सबसे बड़ी कुर्बानी अगर मौला अब्बास की है तो सबसे बड़ी कुर्बानी उनकी ये है कि उनके जज्बात कुर्बान हुए। मौला अब्बास आने के बाद सर को झुका के कहते हैं कि या सैयदी व मौलाई, ए मेरे सैयद व सरदार, हम तो जंग की इजाज़त दे दीजिए। तो इमाम हुसैन इस्लाम ने दाएं बाएं देख के कहा, ए भैया तुम तो हमारे लश्कर के सरदार हो। मौला अब्बास ने सर को झुका के ये कहा कि आका वो लश्कर कहाँ है जिसका मैं अलमदारी करूँ? वो लश्कर अब है कहाँ? एक मरतबा जनाब सकीना की आवाज़ खैमे में से आई, अलातश। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा कि भैया हो सके तो कुछ पानी का इंतज़ाम, पानी की सबीर करो। अब यहाँ से तारीख ही कहती है कि मौला अब्बास एक मरतबा जब घोड़े पे सवार हुए, अपने हाथों से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मौला अब्बास को सवार किया है, और सवार करने के बाद उन्हें सक्का बनाया, उन्हें सजाया, फरेरा उनके हाथ में दिया, मश्क ला करके दी गई है। अब जैसे ही चलने के लिए तैयार हुए हैं, जनाब फिजा ने आके कहा, अब्बास तुम्हें अली की बेटी ज़ैनब खेमे के दर पे बुला रही है। जैसे ही सुना है फौरन घोड़े से उतरने लगे। जैसे ही घोड़े से उतरने लगे, जनाब फिजा कहती, नहीं अब्बास घोड़े पे सवार होकर के अरे दरे खेमा पे आ जाओ। एक बार कहते हैं, अम्मा फिजा मैं कब घोड़े पे सवार होके शहजादी की खिदमत में आया हूँ जो आज इतनी हिम्मत करूँ। कहा तुम्हारी शहजादी का हुक्म है कि तुम घोड़े पे सवार होके इसी तरह से दरे खेमा पे आओ। सर को झुकाए हुए दरे खेमा पे पहुंचे। शहजादी ने देखा, बलाएं ली, अरे देखा, देखने के बाद कहती है, अल्लाह मेरे शेर को नजर ना लगे। कहा अब्बास मैंने तुझे इस हालत में यूं बुलाया है कि मैंने कभी देखा तो नहीं था, मगर मैं लोगों से सुना करती थी कि जब मेरा बाबा जंग के लिए तैयार होके जाया करता था, अरे उसका जाओ जलाल ऐसा था कि लोग देख करके हैरान रह जाया करते थे। आज मैंने सोचा मैं भी अपने बाबा अली की जवानी देख लूं। अल्लाह